Okay, we talked about the isolated IO versus the isolated IO versus mapped IO. okay, Memory map. memory mapped IO. In a memory mapped IO and isolated IO, it is about how the buses are actually connected and all with the IO and this thing. So if we have a separate IO control, we talked about this thing basically. If we have separate IO control, then it is an isolated IO, but address and data bus still has to be common. Okay, but control lines are different for the memory and for the IO. Now in our memory mapped IO, we have all the three common buses. The buses are all common. Okay, this is what we do usually. And then we said that how we do these IO, we have a three techniques. Before that, I'm saying that if we have some kind of an input output device connected with the bus, okay, this is my address, data, and control. The module which is interacting with the input devices have to be at least three things. One is the address decoder that will decode the address from where it has come and where it has to go and so on. Then control circuitry, which will control all the things. And then data and stats register. That this is very important because sometimes if we have the what's called as a programmed IO, in that case, the CPU chucks the status register here, whether it stuffs into it that I'm ready or not ready. That because this is if CPU comes from this side and input device is here, so this is going to be input output module, because our CPU does not interact directly with the input devices. It has to interact with some kind of an peripheral, input output module, not with the peripheral. Okay, peripheral devices, but input output modules. This modules basically will have some kind of status register where input device tells that, hey, I'm ready, I want to send, I want to do this, I want to do that. So there will be status registers which will the CPU chuck to understand which input device wants what to do or output device wants what to do. So data and status registers are also for control mechanism to understand whether CPU should serve this input device or output device or not. Do you understand? Okay, so there are three primary techniques of input output. Either it's a programmed, either it is interrupt driven, or it is direct memory access, or later on we go for IO channels, or what we call them as IO processors. So from programmed to interrupt to direct to this, it is actually basically putting a more intelligence and more processing power while we move down. Okay, in the programmed IO, there is no intelligence whatsoever with the module in this interface with this IO module. Okay, it has these status registers and all. Okay, and everything is done by the CPU. All the things, all the control is done with the CPU. CPU is telling each and everything to the IO module. IO module only has this thing that IO module is here. We got CPU, and IO module has to be in between because we don't talk with the direct with the some device. This is a peripheral device. Okay, these are some peripheral device and so on, which connect with the IO module, and IO module interact with the CPU. Okay, na? This is a both way transmission. Now, what I'm telling you is CPU informs IO module about everything, because IO module is a dumb. It's not having intelligence, not having a processing power, it's not having any capability. It is only going whatever the CPU is doing, it is telling these guys. CPU want to say hi to the this device, this module says hi. Now if it replies back with the hey, okay, but IO module is not conveying that to CPU. CPU itself has to see whether hey has come up or not. Status register, check the status register. What has the reply back? Do you understand? So that what does that mean is the IO module, in technical terms, what I'm telling you is the IO module is not capable of interrupting CPU to telling CPU, hey has come up. The reply, okay, he's saying salam, the walaikum salam has come up. The IO module is not capable to
tell CPU that the reply has come up or whatever has come up. It is the CPU which checks the IO module status registers and sees that, okay, the device is ready. Okay, the device is this thing or not, whatever that is. Okay. But the IO module itself has not that capability that it interacts with the CPU and tells CPU that this thing has happened. Do you understand? So that's why we move to the next level, that's called interrupt driven, where the IO module have a capability to knock the CPU. Hey CPU, come on, the things have come up. Okay. Hey CPU, knock the CPU. And CPU, this guy wants, this input device wants this thing. This output device is having this issue. Whatever the IO module, if it has a capability to do things like knocking, not processing at all, but just knocking the CPU, telling CPU this thing has happened. Okay, come on CPU, do this. Oh, hey CPU, input device is this thing, but no processing, nothing at all, only knocking. That's called interrupt. So it can interrupt, it can only knock the prince, like we have a peon outside. It can knock the, it's not like that. One issue was that one issue is key principal is itself seeing, like students come up to the principal office and there is a peon, we have kept a peon there. Okay, principal doesn't interact with the students of his own, rather with the peon. But one thing is that principal comes out and see the peon has there's some register where the students writes. The principal is coming to there and seeing the register and telling that, telling to this peon, tell this student this thing. Now peon tells to the student, principal do not directly interact with student. Okay, peon tells student, but peon doesn't have capability to knock the principal and tell कि कोई input आ गया, output आ गया, ये device ये मांगता है, ये कुछ करता है. ठीक है, principal comes out of his office and sees that register and just goes back and informs that peon to do this thing, to tell these faculty these things, to tell this office clerks these things. Now peon goes and tells them. Principal do not directly tell them, but principal is coming out of the office and sees what is happening and what's not happening. The next level is that peon has the capability to go to the principal and tell him कि sir ये student आए थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया. रजिस्टर ही दिखाएगा लेकिन वो उसको बताएगा कि वो आए थे, क्योंकि वरना सीपीयू को हर बारी पियोन के पास जाना है ये देखने की कि क्या हुआ, स्टेटस का क्या हुआ. ठीक है ना, कौन कौन आया था क्या नहीं आया था. अब हम एक लेवल बढ़ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि नहीं, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठे, वो बाहर ना आए, वेस्ट वो टाइम ना हो. ये जो बंदा बैठा है पियोन, जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बैठा है, इट गोज टू द प्रिंसिपल एंड टेल्स कि भाई ये सर ये आए थे, ये इनपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया, ये इशू है. काम तो प्रिंसिपल ही करेगा, बताएगा उसको प्रिंसिपल ही कि नहीं तो ऐसा कर, अब ये कर, अब वो कर, अब ऐसा कर. और वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन काम सारा कर रहा है कौन, बता कौन रहा है, प्रिंसिपल. आई मीन द सीपीयू हियर. Do you understand? So only knocking power has now we got the knocking interrupts is having with the input out modules. Now the next level is कि हम इसको कुछ logic भी देंगे. We give him some control mechanism also. ताकि two-way communication with control. जी So two-way communication with control. Module भी communicate करेगा और CPU भी communicate करेगा. Direct method में. नहीं, डायरेक्ट मैप में सिर्फ कम्युनिकेशन का मसला ही नहीं है. टू वे कम्युनिकेशन तो होती है. जो कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हो ना, वो तीनों में होंगी. देखें, ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है. प्रोग्राम में वन वे ही होगी ना सर, प्रोग्राम में वन वे ही होगी. सीपीयू कर सकता है मॉड्यूल के साथ. हाँ, राइट. यस, मॉड्यूल नहीं, वो तो इंटरप्ट में वो किया ना हमने, विदाउट एक्शन. दोनों कर सकते हैं, सीपीयू भी और मॉड्यूल भी, लेकिन मॉड्यूल एक्शन नहीं कर सकता कुछ भी. एग्जैक्टली दैट्स द परफेक्ट. इंडिया में हाँ, बोलो शाबाश. डायरेक्ट मैथड में फिर होगा, दोनों कर सकते हैं कम्युनिकेट, बट कम्युनिकेट नहीं, एक्शन की बात अब करो. कम्युनिकेट तो इंटरप्ट में आ गया ना दोनों का. हम एक्शंस कर सकता है मॉड्यूल. हाँ, उसका मतलब है कि हमने यहाँ पे उसको लॉजिक भी दे दिया है. ठीक है, दैट ही कैन, इट इज लाइक नाउ कि कोई बंदा आता है इसके पास, किसके पास, पियोन के पास, बोलता था उसको कि भाई मेरी शॉर्टेज निकली है. तो वो प्रिंसिपल के पास नहीं जा रहा है, बल्कि वो प्रिंसिपल को इंटिमेट करेगा कि मेरे पास ये बंदे आए थे, इनको ये मसला था. और लेकिन उसके पास लॉजिक है. किसके पास, पियोन के पास. वो उसको खुद ही बता रहा है तो ऐसा कर, वो कर, ये कर, उसको साथ आ रहा है उधर ऑफिस में जो एप्लीकेशन लिख वगैरह वगैरह. सीपीयू को टेंशन नहीं देता है.
ठीक है, लेकिन सीपीयू को फिर इंटीमेट करता है कि सर ऐसे आए थे स्टूडेंट, मैंने इनको ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे ही किया, एंड एवरीथिंग इज इन रिकॉर्ड ऑफ द सीपीयू, ठीक है ना। सो डीएमए में ये होता है, यानी कि आपने थोड़ी सी इंटेलिजेंस को दे दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये करना है कि ट्रांसफर करना है फ्रॉम दिस ब्लॉक टू द मेमोरी, कुछ ट्रांसफर करना है डेटा इनटू द मेमोरी, ठीक है ना। तो प्रोग्राम्ड आईओ में सीपीयू एमिस आईओ इनपुट मॉड्यूलस पान अके गजरावान गो 1 2 3 अच्छा ठीक ठीक है, कर सा ये पक सा ये इंटरप्ट रनस मज गसी युतु योत कि युसन इनपुट मॉड्यूल सु वन एमिस की बाया या छु करुन ट्रांसफर या ना छु करुन ट्रांसफर या छु इंटरप्ट वना, बाकी छु तक करान सीपीयू तो, ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, खाली नॉकिंग पावर उसको। डायरेक्ट मेमोरी में क्या होगा कि सीपीयू सिर्फ बताएगा इसको कि फलाने ब्लॉक से फलाने ब्लॉक ट्रांसफर करना है, लेकिन ट्रांसफर खुद करेगा कौन? डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मॉड्यूल, वो खुद करेगा, ठीक है, सारा ट्रांसफर वगैरह जितना भी करना है, फिर लास्ट में ट्रांसफर करके बोलेगा सीपीयू को कि सर मैंने ये किया, ठीक है, बिकॉज सीपीयू इज द बॉस। डू यू अंडरस्टैंड? और इसके बाद जो है, इसके बाद जो आईओ चैनल प्रोसेसर्स हैं, उनके पास प्रोसेसिंग पावर है, वो सारा सीपीयू का काम खुद करते हैं, और अगर वो काम हम सीपीयू को देंगे तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। जैसे हमारे पास हाई एंड गेम्स खेलनी है, अब ग्राफिकल इंटरफेस हमारे पास इतना, इसमें इतनी प्रोसेसिंग है कि उसके लिए हमने अलग डेडिकेटेड प्रोसेसर ही रखा। डीएमए को रिमूव करके हमने यहाँ पे ये जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इसमें जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मॉड्यूल था, इसको रिमूव करके हमने पूरा एक प्रोसेसर रखा है, जिसको अपनी रैम, अपनी कैश और पूरी प्रोसेसिंग पावर है, ताकि वो उस प्रोसेसिंग जैसे कि डिस्प्ले है उसके ऊपर काम करे, ताकि हमारे पास कोई हैंग ना हो सिस्टम पे। सो ये देखिए 3 टेक्निक्स फॉर इनपुट ब्लॉक जो हमारे पास है, कि सीपीयू आया, उसने रीड कमांड की इशू टू द इनपुट मॉड्यूल, अब वो रीड स्टेटस पड़ेगा ऑफ इनपुट मॉड्यूल, मतलब वो रेडी है कि नहीं है डिवाइस, वो किस में होगा? स्टेटस रजिस्टर, डेटा मैंने दिखाया ना यहाँ पे, ये डेटा एंड स्टेटस रजिस्टर्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस उस स्टेटस रजिस्टर में अपना डालेगा ना कि उसने क्या किया, तो वो सीपीयू रीड करेगा खुद। सो वो स्टेटस रजिस्टर किस में होगी? मॉड्यूल में, या वो होगी इनपुट आउटपुट डिवाइस में, या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में? मॉड्यूल में, वेरी गुड, आईओ मॉड्यूल, यस सर। Question, is there something? Snowbird, okay. Atufa Gul, sir, can we say DMA performs both action and processing also? Basically, action ही हम बोलेंगे ना, processing. हाँ, yes, we could say, if you are saying action in that terms कि English में आप बोलना चाहते हो कि जिसका interrupt आप बोल रहे हो कि interrupt करेगा, that is called action, and processing means he does something. Yes, that is it. It does the processing as well as the action. If you say action means interrupt. Okay. Okay. Now, what I'm saying is here that read status of IO modules, because whatever the device is ready or not, is there an error or something, the device must have put that stuff into the IO module status register. Because if we have a CPU on this side and we need to have an IO module here which interact with the input output devices, those input output devices, for example, CPU wants to write into the hard drive. Okay, now IO module, it's telling IO module that I want to write it to the hard drive. Now, is hard drive ready or not? Is there any issue? Is there a power problem? Is there some bad sector and whatever that is? So that hard drive will put its stuff into the status register of IO module, and CPU is first issuing the command to IO module that I wanna, in this box, CPU is telling IO module that I wanna write to the disk. Okay, then IO module interacts with the disk and makes a ready or not ready, whatever that is here in the stats register. Now CPU is checking that status. So should I go for it or not? If the ready device is not ready, maybe I should not go for it. Okay, do you understand?
फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग प्रिंट जॉब, देन आई एम गिविंग अगेन प्रिंट, मैंने 10 पेज प्रिंट किया और मेरे को पता प्रिंटर मेरा जो है ना ये बड़ा स्लो है, ये कहाँ एक पेज निकालेगा, इसको 1 मिनट लगेगा, है ना। मैंने यहाँ से 50 प्रिंट्स किए, कंट्रोल पी एंटर, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल पी प्रिंट, अभी क्यू में लग गए हैं 10 प्रिंटर, यानी कि सीपीयू आईओ मॉड्यूल को बोल रहा है मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है ना। लेकिन क्या वो दूसरा पेज भी भेजेगा इसको, प्रिंटर को? अभी तो पहला पेज हो रहा है ना, तो दूसरा नहीं होगा। तो प्रिंटर की अभी बिजी है, वो किस में होगा बिजी? वो इसमें होगा, प्रिंटर जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो भी बिजी होगा, यहाँ पे बिजी स्टेट आएगा। सो सीपीयू इज चेकिंग द स्टेटस ऑफ द मॉड्यूल बिफोर इट कैन गिव द नेक्स्ट पेज। ओके, पहला पेज दिया, वो प्रिंटर के बफर में गया, वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी दूसरा, आपने दूसरा प्रिंट जॉब, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रिंट जॉब फटाफट दे दिया ना, तो अब जो सीपीयू है दैट विल चेक द स्टेटस रजिस्टर, इट हैज टू सी द स्टेटस रजिस्टर कि बंदा रेडी है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर वो बंदा बिजी है तो मैं दूसरा पेज नहीं भेजूंगा, लेकिन भेजेगा कौन? सीपीयू, ठीक है। सर वो क्या शो होता है वहां पे स्टेटस रजिस्टर में, वो कैसे शो करता है कि वो It will रेडी be है a कि नहीं? flags, what do you call this? Flags. There are flags. There is a bit, for example, there is a busy, there is an error bit. If the busy is 0, that means it is free. If the busy bit is 1, that means it is what? It's busy. You understand? They are called flags. Okay? Like मेरे ख्याल के error, अगर error bit 1 है तो कुछ error आएगा, जैसे पेपर जैम हो गया इसको, ठीक है ना, जैसे प्रिंटर को पेपर जैम हो गया, तो ये एरर है ना, तो यहां से नहीं भेजेगा ना डेटा इसको, तो सीपीयू रुक जाएगा जब तक एरर फिनिश नहीं होगा। तो हमने पेपर बिट किया, रीस्टार्ट किया वगैरह किया, तो फिर यहाँ पे आईओ मॉड्यूल यहाँ पे 0 कर देगा, बट सीपीयू इज कॉन्स्टेंटली चेकिंग इट, द स्टेटस रजिस्टर, इससे पहले कि वो अपना काम करे, इट इज चेकिंग इट, स्टेटस रजिस्टर। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, so it has to read the status of IO and all that, okay, then check the status in a continuous manner, then CPU is in a busy wait loop checking this, हो गया फ्री, हो गया फ्री, हो गया फ्री। क्यों? क्योंकि आपके IO मॉड्यूल के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो CPU को बोले कि भाई साहब फ्री हो गया। बस में आ रही है? जो यहाँ पे हमारा ये है ना, ये वाला जो इंटरप्ट ड्रिवन है, और इसमें ये फर्क है, ये बिजी वेट लूप यहाँ है, क्योंकि आईओ मॉड्यूल को कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अगर यहाँ से प्रिंटर फ्री हो गया, एरर फ्री हो गया या बिजी खत्म हो गया, अब ये कर सकता है, तो ये जाके सीपीयू को बोले कि सर ये कम ऑन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज, क्यों? दैट्स कॉल्ड इंटरप्ट। ये नॉकिंग पावर जो है ना वो है ही नहीं इसके पास। तो इसके मतलब ये है कि सीपीयू बार बार आ रहा है इस चेक करने स्टेटस रजिस्टर को, हो गया फ्री, हो गया फ्री, हो गया फ्री। डू यू अंडरस्टैंड? बस में आ रही है? तो इसलिए ये वेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम यहाँ पे। check status, go back to it and see read this status register, come back, check again and go back and so on, जब तक कि ये नहीं होगा। अगर एरर हो गया तो then it has to throw into the towel और बोलेगा कि भाई वहां नहीं करेंगे क्योंकि वहां कुछ प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगी वहां पे, जैसे प्रिंटर ही खराब हो गया तो दैट इज इट। लो, वरना अगर वो ठीक है, एरर नहीं है कुछ, तो दैट देन रीड वर्ड फ्रॉम द आईओ मॉड्यूल, फिर वो आईओ मॉड्यूल से पढ़ेगा चीजें, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, और वो फिर उसके बाद जो आईओ मॉड्यूल है वो राइट वर्ड इनटू द मेमोरी, देन द सीपीयू राइट्स वर्ड्स इनटू द मेमोरी बट यूजिंग द आईओ मॉड्यूल। देन व्हेन यू आर डन, जब ये एरर मतलब शो करता होगा तो उस टाइम वहां पे लूप वाली कंडीशन नहीं होगी, लाइक फिर से चेक करना, मतलब लूप वाइज हो जाएगा। एक हो गया कि अगर एरर कंडीशन काइंड ऑफ यहाँ पे वो चीज है कि मतलब कि वो डिवाइस ही खराब है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो उस सूरत में आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें बैड सेक्टर आ गए कुछ, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए अगर आपको कभी आपने देखा होगा कि नए सिस्टम्स में नहीं होता, पुराने थोड़े सिस्टम्स अगर होंगे वहां कोई प्रोसेस हैंग हो जाती है क्योंकि एरर आ गया होता है और सीपीयू चेकिंग द स्टेटस रजिस्टर कंटिन्यूअसली एंड ऑल दैट, तो फिर हमें कंट्रोल शिफ्ट एस्केप एंड टास्क करना पड़ता है उसको, तो वी हैव टू किल दैट प्रोसेस देन, क्योंकि वो बिजी वेट में लगा है लेकिन वहां पे स्टेटस रजिस्टर उसको एरर दिखा रही है एंड ऑल दैट, तो वो फंस सकता है उसमें। तो कभी कभार एरर कंडीशन में दैट इज इट डजंट गो फॉर नेक्स्ट थिंग, इट जस्ट kills the process. You understand? It go for the kill process. And if so, then it goes further and so on. अब इसमें और इंटरप्ट ड्रिवन में क्या फर्क रहेगी?
इंटरप्ट ड्रिवन में ये फर्क रहेगा कि ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे यहाँ जा रहा था वापस स्टेटस चेक करने के लिए, सीपीयू कर रहा था चेक बार बार कि भाई तुसी रेडी है, तुसी रेडी है, तुसी रेडी है। अब ये नहीं होगा, अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो ही रेडी होगा या क्या मसला है वो सीपीयू को बताएगा सर रेडी, ठीक है ना। तो सीपीयू क्या करेगा काम, अपना पहले काम जो वो काम कर रहा था वो पहले खत्म करेगा। उसके पास इसे कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये हम पढ़ेंगे इंटरप्ट टाइप्स वगैरह में, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो ये मॉड्यूल है ये इंटरप्ट कर रहा है अब सीपीयू को कि रेडी, ये बिजी सीपीयू जाके उसको नहीं देख रहा है बार बार हो गया हो गया हो गया हो गया। अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आके जो ही रेडी हो गया उसको बोलेगा, यानी कि तब तक वो सीपीयू दूसरा काम कर सकता है। और सीपीयू अगर कोई काम करना है, जब इंटरप्ट आ गया, जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट दे रहा है, अगर सीपीयू कोई काम कर रहा है वो उसको फिनिश करेगा पहले। जब साइकिल खत्म हो गया, उस साइकिल खत्म होने के बाद अब वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलाएगा, इसे बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। वो हम पढ़ेंगे अच्छे से कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो उसके बाद वो काम करेगा। तो यानी कि ये जो टाइम वाला किस्सा है ये नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी तो सेम ही है, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग हो रही थी ये सारी, फिर ये वर्ड में राइट करना वगैरह वगैरह, जिसमें सीपीयू की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, अब डीएमए में वो भी खत्म होगी। सो ये सारा काम अब डीएमए करेगा। ये सारा इतना काम था, ये सारा काम कौन करेगा, डीएमए। यानी कि बाद में डीएमए इंटरप्ट करेगा सीपीयू को कि सर मैंने ये काम कर दिया, मैंने मेमोरी को राइट कर दिया। उन दोनों में सीपीयू ही इन्वॉल्व था राइट करने में, एक एक चीज में, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पे सारा काम डीएमए करेगा, सीपीयू उसको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां से राइट करना है, किधर को राइट करना है, किस डिवाइस को राइट करना है। बाद में डीएमए का काम है कि वो रेडी है डिवाइस, नॉट रेडी है डिवाइस, और ट्रांसफर करना वो डेटा सारा, जैसे हार्ड डिस्क में एंड ऑल दैट। उसके बाद वो लेकिन सीपीयू को सिर्फ बताएगा, इंटरप्ट मारेगा कि मैंने ये काम किया, ठीक है, ओके। सर अगर इसमें वहां से वो इंटरप्ट कर रहा है, मतलब उसको बोल रहा है कि हाँ मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, तो हम इसमें इंटरप्ट में भी फिर चेक स्टेटस क्यों कर रहे हैं? मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहा है कि हाँ नहीं वहां पे भी कोई हम चेक स्टेटस, यहाँ पे मतलब वहां जी मतलब इंटरप्ट वाले में फिर हम चेक स्टेटस क्यों करें? मतलब इसमें खाली ये है कि यहाँ पे वो उसको बोल रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ, तो सीपीयू बार बार जा रहा है देखने के लिए, लेकिन ठीक फिर यहाँ पे भी हम चेक स्टेटस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ठीक। यहाँ पे तो इंटरप्ट हो रहा है, वो हमें बोल रहा है कि मैं रेडी हूँ, तो हम्म। फिर डायरेक्टली आगे प्रोसेस होना चाहिए, तो हम बार बार वहां पे भी फिर चेक स्टेटस क्यों बार कर बार रहे नहीं कर रहे हैं, हैं? हम बार बार नहीं कर रहे हैं, हम बार बार नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बार कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने कमांड किया कि इनपुट मॉड्यूल को कि भाई कुछ करो, उसके बाद सीपीयू गया अपना काम करने, गया फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने कहा कि मुझे रैम में कुछ डालना है, ठीक है, मुझे वर्ड करना है ना, ये राइट वर्ड इनटू मेमोरी करना है, ये कमांड है असल में। तो उसने इनपुट मॉड्यूल को कहा, इनपुट खुद क्या गया, ये डू समथिंग एल्स, खुद गया कुछ काम करने, ठीक है ना। उसके बाद जो रीड स्टेटस ऑफ इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा काम, ये कब होगा, जब वो जो इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट मॉड्यूल जो है वो देखेगा कि भाई रेडी है सिस्टम कौन सा, ये, ठीक है, या वो रेडी नहीं है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो चीज लेके आया। अब वो सीपीयू को बता रहा है, किसको, ये जरूरी नहीं है कि वो डिवाइस रेडी होगा, वो डिवाइस में एरर हो सकता है, वो डिवाइस में ओवरफ्लो हो सकता है, वो डिवाइस में कुछ इशू भी हो सकता है, या वो डिवाइस रेडी भी हो सकता है, ठीक है। सर वो अब रेडी हो सकता है तभी तो वो इंटरप्ट करेगा ना। नहीं, इसको हर बार इंटरप्ट करना है ना। अगर वो फॉर एग्जाम्पल इसने इसको बोला कि मुझे राइट करना है, ठीक है ना, और वापस जवाब आ गया कि वो क्या बोलते हैं इसको खराब है, तो आपका मतलब ये है कि वो बोलेगा ही नहीं सीपीयू को कि खराब है, वो सिर्फ ठीक पे बोलेगा। तो उसका मतलब है कि सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि वो खराब है कि नहीं है, वो ठीक है बस। तो उसको कुछ और चलाना है, अगर उसमें प्रॉब्लम है ओवरफ्लो है तो कुछ और चलाना है ना सीपीयू को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो क्या थी, वो ठीक थी, एरर थी, ओवरफ्लो था, अच्छा था, बिजी था, नॉट बिजी था, वो यहाँ पे इसने किया। अब जितने देर वो कर रहा था उधर, ठीक है, तो उसने इसको इंटरप्ट मारा सीपीयू को कि सर मैंने इंफॉर्मेशन लाई। अब सीपीयू इससे पहले कि वो राइट करेगा ना, कर राइट सूचना को स्टेटस रजिस्टर, ठीक है, अगर स्टेटस रजिस्टर छ फॉर एग्जांपल बे बिजी या के मास लुशाद बे, व्हाट विल डू, इट विल गो एंड स्टार्ट डूइंग इट्स ओन जॉब, ठीक है। लेकिन इसमें जो था
इसमें सीपीयू बार बार चेक कर रहा था स्टेटस रजिस्टर को कंटिन्यूअसली। क्यों? अब बताओगे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल इसमें 10 साइकिल लगे, फॉर एग्जांपल 10 साइकिल्स के बाद हमारा जो प्रिंटर है वो फ्री हो गया। इवन 100 मेरे ख्याल से 100 साइकिल्स के बाद, इससे भी ज्यादा, प्रिंटर का पेज फिनिश हो गया। ठीक है ना? इस सूरत में हर साइकिल के बाद सीपीयू ने एक साइकिल मारा, अपना किया काम, वो फिर इसको मारता है कि हो गया प्रिंटर फ्री, हो गया प्रिंटर फ्री, हो गया प्रिंटर फ्री। यहाँ 100 साइकिल्स के बाद यहाँ अपना काम करने गया सीपीयू, ठीक है, डू समथिंग एल्स। अब 100 साइकिल्स के बाद प्रिंटर जब फ्री हो गया तो आईओ मॉड्यूल ने यहाँ पे स्टेटस रखा रेडी। ठीक है, प्रिंटर का स्टेटस क्या रखा? रेडी, फॉर एग्जांपल रेडी। अब ये मॉड्यूल इसको सीपीयू को इंटरप्ट कर रहा है कि सर कम। ठीक है, अब इससे पहले कि वो काम करे, सीपीयू हैज टू सी द स्टेटस रजिस्टर्स अगेन कि क्या वो रेडी है कि नहीं है। ठीक है ना, टू मेक इट श्योर कि इट इज रेडी, इट्स नॉट समथिंग एरर और इट हैज नॉट, क्योंकि अगर वो उसके बाद जो ये जो है एक पेज इसने प्रिंट किया उसमें 50 साइकिल लगे और 50 साइकिल के बाद पेपर जैम हो गया। ठीक है ना, सो अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को बोलना है ना सीपीयू को कि पेपर जैम हो गया, ताकि पेपर जैम का रूटीन चले। यहाँ से आपको आ गया पेपर जैम, इसको ये करो वो करो, जैसे सॉफ्टवेयर में आता है ना, फिर वो कैसे, वो कौन करेगा? वो तो सीपीयू करेगा ना काम। आपको समझ आ रहा है? जब पेपर जैम होता है उसके बाद यहाँ पे चढ़ता है ना इन्फॉर्मेशन आपको लैपटॉप पे कि पेपर जैम हो गया, प्रेस सम बटन और समथिंग लाइक दैट। सो दैट मींस कि अब वो इंटरप्ट मारेगा इसको, सीपीयू को। ठीक है ना, और बोलेगा कि सर काम हो गया। अब सीपीयू देखेगा कि उधर क्या मसला है, पेपर जैम है या रेडी है या क्या है मसला। ठीक है ना, तो उसके बाद वो अपना वही इंटरप्ट रूटीन चलाएगा। अगर पेपर जैम का रूटीन है तो वो पेपर जैम का रूटीन चलाएगा। अगर रेडी का ये रेडी है यहाँ पे तो वो दूसरा पेज भेजेगा। तो सर इसमें भी हाँ। नॉट रेडी वाली सिचुएशन हो सकती है ना, तो वहां पे वो मेंशन नहीं करके, जैसे पहली वाली डायग्राम में मेंशन करके नॉट रेडी, सो इसमें भी कभी हो सकता है कि वो रेडी ना हो इंटरप्ट करने के बाद भी। नहीं, वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर इंटरप्ट हो तभी मारेगा ना जब वो कुछ काम वहां से लाएगा सीपीयू के ना अपना काम करने तब तक। अब नॉट रेडी वाला चीज, जो नॉट रेडी मतलब ये है कि वो पहली बार होगा ना कि अभी प्रिंटर को पावर ऑन नहीं था वगैरह था। ठीक है, जो ही आपने पावर ऑन किया तो उसके बाद ही वो इसको इंटरप्ट मारेगा ना कि भाई पावर ऑन हो गया। ठीक है, रेडी है अब। लेकिन हो सकता है कि वो प्रिंटर कुछ और उसको मसले थे। ठीक है, तो सीपीयू को आगे काम करने से पहले वो देखना पड़ेगा ना उसका कि वो क्या है, इसलिए स्टेटस रजिस्टर पढ़नी फिर भी है उसको, उसके बाद ही काम। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो स्टेटस रजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएमए खुद वो काम कर रहा है सारा, वो खुद राइटिंग कर रहा है। इट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इट इज एक्सेसिंग द मेमोरी एंड राइटिंग ऑफ इट्स ओन। वहां पे सीपीयू राइट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे डीएमए कर रहा है। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं सीपीयू को, खाली जब काम होगा पूरा होगा उसके बाद वो इंटरप्ट मारेगा किसको? सीपीयू को, कि भाई साहब मैंने काम किया। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर। तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होगा? वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। सीपीयू हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर आईओ। ओके, स्टेटस सेंस करना, रीड राइट कमांड, ट्रांसफर डेटा, वो सारे का सारा करता है और बिजी वेट लूप हो जाते हैं, सो इट वेस्ट्स टाइम, है ना। जैसे सीपीयू ने रिक्वेस्ट की, आईओ मॉड्यूल परफॉर्म्स ऑपरेशन, फिर स्टेटस बिट सेट की उसने कि उस डिवाइस के बारे में, उसके बाद सीपीयू चेक करता है कॉन्स्टेंटली पीरियडिकली कि वो स्टेटस बिट्स वो चेक करता रहता है कि ठीक है कि नहीं है, उसके बाद वो अपना काम करेगा एंड सो ऑन। इट्स यू कैन रीड इट, इट्स सिंपल। लाइक सीपीयू ने एड्रेस किया पहले जनरेट कि मुझे फलानी डिवाइस चाहिए। ओके, तो उसने कंट्रोल किया जैसे, उसके बाद वो बोलेगा आईओ मॉड्यूल को लाइक थोड़ा सा नच के दिखा, यानी कि डिस्क को। ठीक है, थोड़ा सा स्पिन करके इसको थोड़ा स्पिन करो एंड वगैरह वगैरह, तो वो आईओ मॉड्यूल फिर उसको उसके ऊपर काम करता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन रीड इट नाउ। आई हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। सो एड्रेसिंग इसमें क्या होगा कि आपको जैसे मेमोरी एक्सेस करते हैं वैसे ही हम एक्सेस कर सकते हैं आपके कौन से, अगर हमारे पास प्रोग्राम्ड आईओ है तो एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन एड्रेस, यूनिक एड्रेस, कि हर एक डिवाइस का अपना अपना एड्रेस होगा। तो सीपीयू हर एक जिस डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है उसका एड्रेस जनरेट करेगा। सर लेस देन 1 मिनट। यस, वन क्वेश्चन एंड दैट्स इट। यस, असाइनमेंट का था ना कुछ,
वो आपने बोला असाइनमेंट था में wise आज है। चढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज असाइनमेंट्स हमारे पास मंडे के बाद थोड़े से कुछ एग्जाम्स हो गए, मे बी आई विल टेक दोज एज इंटरनल्स।